So today we are doing trigonometric functions, identities. So today we will start by the class 10th identity, and most of the maths student and most of the other student also remember this identity because this is very common. Because here we have sin square a plus cos square a is equals to 1. तो ये आइडेंटिटी लगभग दुनिया के जो भी मैथ्स स्टूडेंट होंगे सबको पता है. तो दूसरी आइडेंटिटी अपने पास है, कोई चीज़ याद नहीं करनी है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. हम इसी आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी भी क्रिएट कर सकते हैं. इफ़ वी राइट दिस आइडेंटिटी sin square a plus cos square a equals to 1, and first we divide all these terms by sin square a. So when we divide all these terms by sin square a, we will get something. Sin square a and sin square a will be cancelled. So this will come 1. And this is cos square a upon sin square a. As you know, cos a upon sin a is equals to cot a. So here we have a square in both. That's why it become cot square a. 1 plus cot square a. 1 upon sin. As you know, 1 upon sin a is equals to cosec square cosec a. But here we have a square. That's why it become cosec square a. So this is our second identity. 1 plus cot square a is equals to cosec square a. Now again we will write this to make the third identity of class 10th. This is sin square a plus cos square a equals to 1, and we will divide this by term cos square a. So this is cos square a as the denominator of all the given term in this first identity, and this will be cancelled. Cos square a and cos square a will be cancelled. So you can see here sin a upon cos a, this is equals to tan a, but here we have cos square in both. That's why we will write tan square a plus 1 is equals to 1 upon cos square a is equals to 1 upon cos a only is equals to sec a, but we have a square here. That's why we will write cos square a. So this is the third identity of class 10. तो क्लास 10th में भी ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसको याद करना है. कुछ बच्चों को दिमाग में ये टेंशन बना रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री में सब याद करना है, बट एक्चुअल थिंग इज कि नथिंग टू रिमेंबर, नथिंग टू लर्न, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म. So this is here we have sin square a plus cos square equals to 1. We will write again this and divide by the term sin square a, all three terms divided by sin square a. Sin square a will be cancelled. We will have 1 plus, and this is cos square a upon sin square a, it will come cot square a. 1 upon sin square a, it will come cosec square a. Now come to the third identity. Again write the same term, and now we have to divide this. We have to divide this by cos square. So sin square a upon cos square a, it become tan square a. Cos square a and cos square a will be cancelled. It become 1. Here we have 1 upon cos square a, it become sec square a. तो जो भी जरूरी आइडेंटिटीज कन्वर्जन है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इससे समझ सकते. तो ये बात हो गई 10th की. अब इसके बाद अपन समझते हैं क्लास 11th में हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ को समझना है और कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ को पढ़ना है. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले हम 4 आइडेंटिटीज़ को समझेंगे, उसके बाद की बात करेंगे अपन वो सभी रेस्ट ऑफ जो आइडेंटिटीज़ होंगी वो उन 4 आइडेंटिटीज़ पे डिपेंडेबल है. तो अपन ट्राई करेंगे कि कैसे हम इसे लर्न कर सकते हैं. ओके, चलिए देखते हैं. उसके बाद sin a plus b. This identity is of sine, and we have the two angles a and angle b. We are going to do the sum of these two angles, and we want the value of sine ratio with a and b, the sum of a and b in terms of sine. So we have to write sin a cos b plus cos a sin b. So this is very easy to understand. It is like a song, sin a cos b, cos a sin b. So this is very easy to understand. Now the second thing we have is sin a minus b.
So when we write sin A minus B, we will have sin A cos B minus cos A sin B. तो यहाँ पे भी एक बात समझने की बड़ी इजी बात है कि अगर प्लस लिखा है तो उसी चीज़ पे आपको प्लस लगाना है, और माइनस लिखा है तो उस चीज़ पे आपको माइनस लगाना है। बाकी सॉन्ग सेम है, sin A cos B cos A sin B. If A plus B, then we have to write sin A cos B plus cos A sin B. And then we have sin A minus B. तो sin A sin B, तो sin A cos B minus cos A sin. तो this is very easy to understand now. Cos will follow something. Cos का काम है उल्टा चलना, वो sin का भी उल्टी चाल चलता है। और आपने वैल्यू टेबल चार्ट में क्लास 10th में भी पढ़ा है कि sin की जो वैल्यूज़ होती थी उसका रिवर्स ऑर्डर cos में लिख दिया जाता था, रिवर्स ऑर्डर। तो आप एक चीज़ देखिए कि इफ़ वी राइट cos A प्लस बी, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इसमें साइन की गड़बड़ी सभी बच्चे करते हैं, इसको भी सीधा सीधा समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगा देना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे माइनस का यूज़ करना है। एंड cos विल फॉलो द डबलेट्स। डबलेट मीन्स cos A cos B माइनस sin A sin B। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ cos A प्लस B। तो देखिए काम उल्टा क्या हुआ, हमने यहाँ पे प्लस का यूज़ किया है, बट आइडेंटिटी प्लस की है, बट यहाँ पे यूज़ किसका हुआ है, माइनस का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि cos का काम थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट ऑर्डर में cos साथ साथ भी चल रहा है, इसीलिए हम इसे डबलेट्स बोल सकते हैं कि डबलेट्स मतलब cos A cos B sin A sin B। इफ प्लस इज हियर यू हैव टू राइट माइनस, एंड इफ माइनस इज हियर cos A minus B, it will come cos A cos B, and we have to write plus here because cos का काम थोड़ा उल्टा है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब चलिए ये आइडेंटिटीज़ है, इसी से जुड़ी हुई आइडेंटिटी पे अपन चर्चा करते हैं। पहली आइडेंटिटी जिस पे अपन करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि इन 4 आइडेंटिटीज से हम कुछ और अदर आइडेंटिटीज़ को भी बना सकते हैं। sin A प्लस A, इट बिकम sin A cos A प्लस cos A sin A। तो आप लोग इसमें देख सकते हो, ये समझने वाली बात है कि दोनों ही टर्म्स हमने क्या कर लिए, इक्वल। इफ वी ऐड बोथ द थिंग्स, तो A प्लस A इज इक्वल्स टू sin A cos A एंड cos A sin। तो ये बन जाएगा 2 sin A cos A। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी निकल कर आई sin A प्लस A sin 2A की। तो इस चीज़ को सभी लोग को ध्यान से समझना है कि sin 2A की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin A cos A। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको 5th आइडेंटिटी अपन नाम दे देते हैं। 6th आइडेंटिटी इज एज सेम, जिसमें अपन को ध्यान देना है cos A प्लस A। अब देखिए क्योंकि A इक्वल्स टू B है, इसलिए cos A प्लस B एट द प्लेस ऑफ A, एट द प्लेस ऑफ B वी विल राइट A एंड A। इट बिकम cos A माइनस sin A इंटू sin A। सो दिस विल कम cos A इंटू cos A, इट बिकम cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। सो दिस इज cos 2A आइडेंटिटी। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर cos 2A की आइडेंटिटीज़ को हम कुछ टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब इधर पर देखेंगे सभी लोग, cos 2A कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर A। इफ वी राइट cos स्क्वायर A 1 माइनस sin स्क्वायर A। आप ये आइडेंटिटी सभी लोग जानते हैं, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन राइट cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो आप देखिए हमने इस जगह पर cos स्क्वायर A की जगह पर हमने लिख दिया है 1 माइनस sin स्क्वायर A, एंड वन मोर sin स्क्वायर इज देयर। सो इट कैन बी रिटन cos 2A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A। तो ये भी एक आइडेंटिटी। इफ वी चेंज cos 2A, so we will write cos at the place of sin square A, we can write this is cos square A minus 1 minus sin square A। So we can write here, this is wait a minute, this is, we are converting sin square A, so we can write sin square A is equals to 1 minus cos square A। So here 1 minus cos square A, so it will come cos square A minus 1 plus cos square A। So here it will come 2 cos square A minus 1। So this is one more term of this identity, cos 2A is equals to 2 cos square A minus 1। इन सभी चीज़ों का यूज़ होने वाला है और अच्छा खासा यूज़ होगा
इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसलिए इन सभी आइडेंटिटीज़ को अपन को मन लगा करके समझना है। चलिए पर हम कुछ आइडेंटिटीज़ दोबारा लिखने जा रहे हैं जो अभी हमने देखी हैं, और उनके कुछ कन्वर्जेंस को या फिर हम उनके कुछ टर्म्स को समझेंगे। जैसे वी कैन राइट हियर साइन 2a, एज यू नो द साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, but we can write this identity in terms of tan, in terms of tan. How we can write? So we can write it as you know कि सभी नंबर्स के अपॉन में 1 तो होता ही है। सो वी कैन राइट साइन ए कॉस ए अपॉन, दिस इज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हियर वी कैन टेक कॉमन, दिस इज 2 sin a cos a, we can take cos square a as common, so it will come sin square a upon cos square a plus 1. So this cos square and this cos will cancel, and this is 2 sin a, and here cos a into tan square a plus 1. So we can write, as you can see, this is sin a upon cos a, and you know sin a upon cos a is equals to tan a. So we can write here 2 tan a upon 1 plus tan square a. So this is also one more identity in terms of tan. So sin 2a in terms of tan we can write this. तो इससे आप समझ सकते हो कि sin 2a को tan के टर्म्स में हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक बात थी tan की, sin 2a की इन टर्म्स ऑफ tan। अब आते हैं अपन tan के बारे में कुछ पढ़ने और cot के बारे में कुछ पढ़ने के लिए। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, इसी प्रकार से आइडेंटिटी होती है cot a प्लस b, इट इज इक्वल्स टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। अच्छा, जनरली इसके माइनस टर्म में सभी बच्चे अगर याद रखने के हिसाब से इसको काम कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि दिस विल बी सेम, न्यूमरेटर इज सेम, दिस इज प्लस, एट माइनस वी हैव, व्हेन वी हैव माइनस वी हैव टू मेक इट प्लस, एंड हियर cot b माइनस cot a। इस चीज़ का सब ध्यान रखें कि इसके नेगेटिव में चेंजेस होते हैं, cot b पहले आता है फिर cot a आता है, cot a प्लस cot b एंड हियर cot b माइनस cot a। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखें, cot में थोड़ा सा चेंज अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अपन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं हमने वही 4 आइडेंटिटीज लिखी हैं जो हमने शुरू में आपको बताई। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सी एंड डी फार्मूलाज, जिसको अपन कहा जाता है, बट अपन इसकी जगह यूज़ करें अगर ए एंड बी फार्मूलाज, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी, cos a प्लस cos b, sin a माइनस sin b, cos a माइनस cos b। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए आपको नहीं, बस आप कैसे ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसमें देखें तो अगर हम इसे प्लस साइड ले लेते हैं और इसे हम माइनस साइड, यानी कि जब भी हम बात करेंगे प्लस वाले आइडेंटिटीज़ की तो अपन इस फॉर्मेट को चूज़ करेंगे। साइन में बात करेंगे तो वी विल चूज दिस फॉर्मेट। इफ वी टॉक अबाउट कॉस, so we will choose this cos a plus cos b. Now for minus we will choose the other thing, इसको अपन अलग से मेंशन करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जब अपन माइनस को चूज़ करेंगे तो we will write sin a minus sin b, so we will write this term, we will write this term. And when we write cos a minus cos b, so we will use this term. ये सभी लोग ध्यान से सुनो, this term or any term whatever you want to choose, but this is a minus sign. So for cos you have to choose the from the identity of cos, and for sin you have to choose from the identity of sin. तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मेट आप सभी लोग जान लें कि अपन a इक्वल्स टू करेंगे a प्लस बी बाई 2 एंड b की जगह पे अपन करेंगे a माइनस बी बाय 2। सभी लोग इस चीज़ को ध्यान से, तो सबसे पहले तो सभी में आप 2 लिख लो,
एंड बट लास्ट में आप -2 लिख दो। कॉस ए माइनस कॉस बी पे आप क्या लिख दो, -2। अब चलिए अपन साइन ए प्लस साइन बी की बात कर रहे हैं, तो अपन इस फॉर्मेट को उठाएंगे। तो एट द प्लेस ऑफ ए, तो वी विल राइट हियर साइन ए की जगह पे क्या लिखना है आपको, a प्लस बी बाय 2। कॉस बी, सो वी हैव टू राइट a माइनस बी बाय 2। चलिए अब आते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, प्लस है तो वी विल राइट दिस फॉर्मेट। सो वी कैन राइट हियर कॉस ए, एट द प्लेस ऑफ a यू हैव टू राइट a प्लस b बाय 2 एंड कॉस b, दिस इज कॉस b, वी हैव टू राइट a माइनस b बाय 2। चलिए साइन ए माइनस साइन बी, माइनस साइड पे चलते हैं, माइनस साइड पे अपन को इसको उठाना है। सो दिस इज कॉस ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस b by 2. Now cos a minus cos b, it means we have to choose this format. So this is sin a plus b by 2 and then sin b, it means a minus b by 2. So these are the identities. इसको अपन C and D formulas बोलते हैं। तो अपन चाहें तो इसको ध्यान से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको राइट डाउन करें और समझ लें कि अपन जब प्लस करेंगे, चाहे वो साइन ए प्लस साइन बी हो तो अपन इस फॉर्मेट को उठाएंगे यहाँ पे। कॉस ए प्लस कॉस बी हो तो अपन इस फॉर्मेट को उठाएंगे। साइन ए माइनस साइन बी हो तो अपन इस फॉर्मेट को उठाएंगे। कॉस ए माइनस कॉस बी हो तो अपन इस फॉर्मेट को उठाएंगे। देखिए इधर भी साइन साइन है, इधर भी साइन है। साइन ए माइनस साइन बी हमने कहा ये फॉर्मेट उठाएंगे, तो देखिए इधर भी कॉस, इधर भी साइन है। कॉस ए प्लस कॉस बी, सो वी विल राइट दिस वन। तो दिस इज कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाई 2। हमने यहाँ पे क्लियर ही किनारे कर दिया है कि दिस इज ए इक्वल्स टू ए प्लस, ए मीन्स वी विल राइट ए प्लस बी बाई 2 एंड बी मीन्स ए माइनस बी बाई। तो साइन ए साइन बी दिस फॉर्मेट, साइन ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 सभी में लगाना है, बस लास्ट में आपको क्या कर देना, माइनस फॉर कॉस ए माइनस कॉस बी। तो इस बात का सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आइडेंटिटीज़ को रफ वर्क में तुरंत यूज़ करना है। तो आप एक चीज़ है, इसका रफ नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। ओके क्लास, अब अपन आ जाते हैं साइन 3a, कॉस 3a एंड टैन 3a। इनके फॉर्मूलाज को समझना है। आप इनको लर्न करने के सबसे आसान तरीका ये है कि जो आप शुरुआत करेंगे साइन के लिए वो बड़ा आसान ही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3a लिखा हुआ है तो आप लिखो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका उल्टा आप लिखो इन टर्म्स ऑफ कॉस 4 कॉस क्यूब a minus 3 cos a. In tan you have to write this one, 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. So these are the identities। और इनको समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी कभी आपको ये चीज़ें हर वक्त आप लेकर के बैठ नहीं सकते प्रूफ करने के लिए, आपको सबसे पहले तो याद रहना चाहिए कि 3a से शुरुआत होती है, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। ये फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। एंड कॉस 3a 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। फॉर टैन 3a 3 टैन a, जैसा लगभग साइन का शुरुआत है वैसा टैन का भी होता है, हर चीज़ में होता है। तो टैन 3a इक्वल्स टू 3 टैन a माइनस टैन क्यूब a 1 माइनस टैन 3 टैन स्क्वायर। देखो इस चीज़ को समझने के लिए अपन इनको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए अपन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर अपन चूज़ करें सबसे पहला टर्म जो अपना है दैट इज़ साइन 3a, हाउ टू प्रूव। तो चलिए अपन इसको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, शो दैट sin 3a equals to 3 sin a minus 4 sin cube a. So here on taking LHS we have sin 3a. What we have? Sin 3a. Sin 3a can be written as sin 2a plus a. So using identity sin a plus b. So this is sin a cos b plus cos a sin b. So by using this identity we will write here sin 2a plus a is equals to
sin 2a cos a plus cos 2a and sin a. So here you can see sin 2a and cos 2a. We have to write these identity in terms of sin 2a is equals to 2 sin a cos a, and here one more cos, so it will be multiplied. Here's cos 2a, it can be written as 1 minus 2 sin square a. In terms of sin, it is sin a. Now this will be 2 sin a, this is cos a into cos a, it become cos square a. It become how much? Cos square a. Plus this sin a will multiply inside the bracket, it becomes sin a minus 2 sin square a into sin a, it becomes sin cube a. Now 2 sin a, we can change this one 1 minus sin square a plus sin a minus 2 sin cube a. Here you can multiply this term inside the bracket. So 2 sin a will multiply with 1, it become 2 sin a, and when 2 sin a will multiply with sin square a, it become 2 sin cube a. Now rest of the terms are sin a minus 2 sin cube a. So here 2 sin a and sin a both become 3 sin a. Here minus 2 sin cube a minus 2 sin cube a, how many 2 sin cube a? It is 2 plus 2, it become 4 sin cube a. So here you can see the same identity what we have taken at RHS. So this is sin 3a equals to. That's how we will prove this. तो अब मुझे लगता है कि समझ में ये चीज़ आ गई होगी, सभी समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात। और अब देखिए इसी तरह में अगर अपन कॉस को प्रूव करना चाहें तो कॉस को प्रूव कर सकते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं कि कैसे अपन प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपन ने फिर से एक क्वेश्चन ले लिया है जिसका LHS है cos 3a is equals to RHS 4 cos cube a minus 3 cos a. So we will apply the same thing on taking LHS cos 3a, it can be written as cos 2a plus a. Now cos 2a plus a, by using the identity cos a plus b, this is equals to cos a cos b minus sin a sin b. Now come to the identity, it comes cos 2a into cos a minus sin 2a into sin a. चलिए अब अपन सभी इसमें देखते हैं cos 2a की आइडेंटिटी। इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए, आप RHS को देख के काम करिएगा। इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए तो वो आइडेंटिटी होती है cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अपन इस जगह पे इसका यूज़ कर लें, अगर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड दिस इज cos a माइनस। अभी आ जाइए sin 2a की आइडेंटिटी, वही लिखनी है जो अपन ने पिछले क्वेश्चंस में लिखी है। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 sin a cos a इंटू साइन a, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। दिस cos a विल मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, दिस बिकम cos cube a minus cos a. Now here this is 2 sin a into sin a, it becomes sin square a, and this is cos a. Come to the next, 2 cos cube a minus cos a, and here we have to write 2 cos a, and this sin square a become 1 minus cos square a, because you know sin square a is equals to 1 minus cos square a. तो ये एक लिखने का तरीका भी है कि जब भी जो भी आप आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपको लिखना चाहिए। ऐसा आप एस चंद वगैरह की बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी थ्योरम सॉल्व होता है, क्यों होता है, क्या कारण है हर एक स्टेप का, तो वो रीजन्स यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, आंसर शीट में कभी भी कुछ भी लिखते हो तो आपका रीज़न यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज़ वो एक बैड इंप्रेशन है कि आप कहीं से भी कुछ भी प्रकट कर रहे हो, तो वो गलत बात है। तो आप यहाँ पे देखिए cos cube a minus cos a, here this 2 cos a will multiply inside the bracket, it become 2 cos a minus 2 cos a, and this minus minus plus 2 cos cube a, because we have sin square a multiply with cos a, it become 2 cos cube a. Now this and this will be added, 2 cos cube a plus 2 cos cube a, it becomes 4 cos cube a. This is minus minus, it become plus cos a minus minus cos a minus 2 cos a, it become minus 3 cos a. So this is the RHS
इट इज़ इक्वल्स टू cos 3a। तो ये प्रूफ करने के लिए एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान से सभी लोग इसको पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम में जब कभी भी आएगा तो आपको ऐसा कुछ भी प्रूफ करने के लिए, क्लास 11th होम एग्ज़ाम होता है, आपको कोई भी आइडेंटिटी का डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आ सकता है, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ओके, चलिए चलिए अब अपन इस आइडेंटिटी पे ध्यान देते हैं जो कि आपको दिख रही है, tan 3a। देखिए, ऑन टेकिंग LHS, tan 3a can be written as tan 2a plus a. So we can use the formula tan a plus b. It is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So in this format we have to represent 2a plus a. So it will be written as tan 2a plus tan a upon 1 minus tan 2a into tan a. All you know about the identity of tan 2a. Tan 2a is equals to 2 tan a minus 1 minus tan square a. तो ये चीज़ सभी लोग ध्यान से सुने और ध्यान से अप्लाई करें। तो जहाँ कहीं भी आपको tan 2a इस फॉर्मूले में दिख रहा है, we will replace tan 2a by the RHS of the given formula. तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 tan a upon 1 minus tan square a plus tan a upon 1 minus 2 tan a 1 minus tan square a into tan a. Now everyone, we are going to take LCM. LCM is from the numerator, it is 1 minus tan square a. Here 2 tan a, and this 1 minus tan square a will multiply with tan a. It is tan a 1 minus tan square a. Now at the denominator again we will have the same LCM. It will multiply first with 1 minus tan square a minus 2 tan a, and you can see this tan is also here. Now denominator of both will cancel. Here you can see this is 2 tan a plus tan a, and this tan a is multiply inside the bracket, so it will come minus tan cube a upon 1 minus tan square a, 1 minus tan square a. This 2 tan a into tan a, it become minus 2 tan square a. So now everyone, you can see here, this is 2 tan a plus tan a, it become 3 tan a minus tan cube a upon, this is 1 minus plus tan square a added with 2 tan square a, it become minus 3 tan square. So this is the tan 3a identity. We have proved this one and proved. इस बात का सभी लोग ध्यान रखें कि हम किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ को आने वाले एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स जिनको भी ऐसे क्वेश्चंस प्रूव करने हो, वो इनकी प्रैक्टिस इस तरीके से करें, तो इट विल बी मोर इजी टू यू एंड मोर ईजियर टू यू। दैट्स वाई आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, है ना। तो अब अपन इस चीज़ को बंद करते हैं यहीं पे, क्योंकि अपन ने लगभग वो यूज़फुल आइडेंटिटीज़ पढ़ ली हैं जो आपको क्लास 11th के एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू।